السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان المبارک میں دوسرے اوقاف کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ وزیر کے طور پر کانگریس کے سینئر قائد سابقہ کرکٹر محمد اظہرالدین نے عہدے کا حلف لیا۔ راج بھون میں گورنر جشنو دیو ورما نے عہدے کا دلایا حلف۔ ریاست تلنگانہ میں حکومتی مشیر کے طور پر بودھن ایم ایل اے سدرشن ریڈی کو کیا گیا تقرری۔ سکریٹریٹ میں منسٹر کے ساتھ ایکشن چیمبر کیا مختلف۔ 6 گارنٹی کے نفاذ کی ذمہ داری بھی کی حوالے۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جنتی تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ہر گاؤں میں 2K رن کا انعقاد کرتے ہوئے ان کی تصویر پر عوامی نمائندے عہدیداروں نے پیش کی خراج عقیدت۔ ملک کی سلامت کے لیے اہم ترین کردار ادا کرنے کا سہرا سردار ولبھ بھائی پٹیل کو جاتا ہے۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے زیر اہتمام شہر میں رن فار یونٹی پروگرام کا ضلع کلکٹر ٹی وی کرشنا ریڈی سی پی سائی چیتنیا نے کی شرکت۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل ایک قائد نہیں بلکہ وہ ایک طاقت ہے۔ شہر نظام آباد میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جنتی تقاریب میں بی جے پی ایم ایل اے دھن پال نے شرکت کرتے ہوئے ان کے مجسمے پر پیش کی خراج عقیدت۔ بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے سڑک حادثے میں زخمی ہونے والے باباپور دیہات کے ساکن حیات کے افراد خاندان کو 1 لاکھ کی LOC کی حوالے۔ آباد منڈل کے رامپور میں واقع BC ویلفیئر ہاسٹل میں مشکوک حالت میں فوت ہونے والی سری ورشا کے افراد خاندان سے تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ ریاست تلنگانہ وزیر کے طور پر کانگریس کے سینئر قائد و سابقہ کرکٹر محمد اظہرالدین نے عہدے کا حلف لیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور معروف کانگریس لیڈر محمد اظہرالدین نے جمعہ کو راج بھون میں ایک شاندار تقریب کے دوران وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے اظہرالدین سے رازداری کا حلف لیا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی، ریاست کابینہ کے متعدد وزراء، کانگریس کے ارکان اسمبلی و قانونی ساز کونسل، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر معززین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اظہرالدین کو ریاستی حکومت میں اقلیتی بہبود، کھیل و نوجوان امور کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ اظہرالدین کے حلف کے ساتھ ہی ریونت ریڈی کابینہ میں ایک اور اہم اضافہ ہوا ہے جسے کانگریس حلقوں میں خوش آئند قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اظہرالدین کا تعلق حیدرآباد سے اور وہ 8 فروری 1963 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ 1984 میں کرکٹ کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ اپنی شاندار بیٹنگ، نفیس انداز اور شاندار قیادت کے سبب عالمی شہرت حاصل کریں گے۔ اظہرالدین نے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے 99 ٹیسٹ میچوں اور 334 ڈے میچوں میں ملک کی نمائندگی کی۔ ان کی کپتانی میں بھارت نے کئی یادگار فتوحات حاصل کیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور 2009 میں کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر مراد آباد اتر پردیش سے لوک سبھا کے لیے منتخب ہوئے۔ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وہ
ریاستی سیاست میں سرگرم ہو گئے اور حالیہ برسوں میں تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دی۔ حلف برداری کے بعد میڈیا سے بات کرتے محمد اظہر الدین نے کہا کہ وہ تلنگانہ کے نوجوانوں اور اقلیتوں کی ترقی کے لیے پوری دیانتداری سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ، روزگار کے مواقع اور اقلیتوں کی فلاحی اسکیموں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ And integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Muhammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے RSS پر پابندی عائد کرنے کی خواہش۔ کانگریس کے صدر کھڑگے نے الزام عائد کیا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی امن و امان کی خرابیوں کی اصل وجہ BJP اور RSS ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS پر پابندی عائد کی جانی چاہیے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کانگریس پر کی گئی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ 1948 میں منتہا گاندھی کے قتل کے بعد خود سردار پٹیل نے RSS کے خلاف سخت ریمارکس دیے تھے۔ کھڑگے نے کہا کہ سردار پٹیل آئرن مین اور سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی آئرن لیڈی دونوں عظیم رہنما تھے، جنہوں نے ملک کی خدمت اور اتحاد کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ RSS پر پابندی کے سوال پر کھڑگے نے وضاحت کی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ منتہا گاندھی کے قتل کے لیے جو ماحول بنا اس کے پیچھے RSS کا ہی ہاتھ تھا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے شریام پرساد مکھرجی کو اس سلسلے میں خط بھی لکھا تھا۔ کھڑگے نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نہرو اور پٹیل کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے درمیان گہرے تعلقات تھے۔ نہرو نے پٹیل کو قومی اتحاد کی علامت قرار دیا تھا اور پٹیل نے بھی نہرو کو ملک کے لیے ایک مثالی قائد کہا تھا۔ کشمیر کے انضمام کے معاملے پر وزیر اعظم مودی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ مودی کی یہ بات تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ دوسری جانب BJP نے کھڑگے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے دہائیوں تک سردار پٹیل کی خدمت کو نظر انداز کیا ہے۔ بڑا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سردار پٹیل نے اس وچاردھارا پر پرتیبندھ لگایا جس سے BJP نکلی، اور آج پھر ایک ایسے لوہ پروش کی ضرورت ہے جو اس وچاردھارا پر پرتیبندھ لگائے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا RSS پر پرتیبندھ لگانا چاہیے، لگایا جانا چاہیے ایک بار پھر سے؟ اب میرا ویکتک وچار ہے اور میں کھل کے بولوں گا لگانا چاہیے، کیونکہ یہ ولبھ بھائی پٹیل جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہے، اگر اس کو مریادہ پردھان منتری دیتے ہیں، شاہ دیتے ہیں، تو اس کو ہونا چاہیے، کیونکہ آج دیش میں جو کچھ گڑبڑیاں ہو رہی ہے اور دیش میں جو کچھ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم بھی کریٹ ہو رہا ہے، یہ سب کانگریس کے 2 ارکان اسمبلی سدرشن ریڈی اور پریم ساگر راؤ کو کابینہ درجے کا عہدہ ناراضگی دور کرنے تلنگانہ حکومت کا فیصلہ۔ تلنگانہ حکومت نے انتظامی معاملات سے متعلق ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے۔ بھودن کے رکن اسمبلی سدرشن ریڈی کو سرکاری مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح منچریال کے رکن اسمبلی پریم ساگر راؤ کو تلنگانہ اسٹیٹ سول سپلائی کارپوریشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے اور انہیں کابینہ درج بھی دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج چیف سیکریٹری ایس رام کرشنا راؤ نے باضابطہ احکامات جاری کیے۔
बताया जाता है कि काबीना में शमूलियत के मुंतज़िर इन दोनों सीनियर कायदीन की नाराज़गी को दूर करने के लिए ये ओहदे दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी काबीना में आज अज़हरुद्दीन को शामिल किया गया है। मज़कूरा दो कायदीन भी काबीना में शामिल होने के दावेदार थे। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का टाइम टेबल जारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमे इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनाकिद किए जाएंगे। इम्तहानात की तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक दूसरे सेशंस में होंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एथिक्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, अखलाकियात व इंसानी अक़दार का इम्तहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम का इम्तहान 24 जनवरी को इन्हें औक़ात में मुनाकिद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया है कि वह अपनी इम्तहानी मराकिज़ और तारीख़ों की पूरी जांच कर ले ताकि किसी किस्म की उलझन ना हो। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने करीमनगर के तिम्मापुर मंडल का दौरा करते हुए किसानों के मसाइल से की वाक़फ़ियत हासिल। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज करीमनगर ज़िला के तिम्मापुर मंडल के मुक्तापल्ली गांव में वाक़े धान की ख़रीदारी मरकज़ का दौरा किया और किसानों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर कविता ने कहा कि हालिया मुंतहा तूफ़ान के बाइस किसान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ख़रीदारी मराकिज़ में कई माह से धान की ख़रीदारी नहीं हो रही है। अलावा अज़े मुसलसिल बारिश ने किसानों की हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी है। हुकूमत को इंसानी हमदर्दी के नक़्ते नज़र से फ़ौरी इक़दामात करने चाहिए। कविता ने कहा कि फ़ी एकड़ 10,000 रुपये मुआवज़ा बिल्कुल नाकाफ़ी है। हुकूमत को कम अज़ कम फ़ी एकड़ 50,000 रुपये मुआवज़ा अदा करना चाहिए ताकि किसानों को हकीकी सहारा मिल सके। इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत नमी वाली या बोने वाली फसल को भी ख़रीदने के अहकाम जारी करे, क्योंकि हालिया बारिश की वजह से ज़्यादातर धान मुतासिर हो चुका है। कविता ने बताया कि मुक्तापल्ली के ख़रीदारी मरकज़ में किसानों ने धान की यूरिया 1 माह से ढेर लगा रखी है। गुज़िश्ता रात बारिश से सारा धान भीग चुका है और किसानों ने आर्जी तौर पर तारपोलिन डालकर इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो एक अफसोसनाक मंजर है। कुदरती आफत के सबब धान में अब कॉम्प्लें निकल आई हैं, मगर इसके बावजूद हुकूमत या इंतज़ामिया की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। इन्होंने कहा कि मिलर्स ये शर्त रख रहे हैं कि नमी की मकदार 17% से कम हो, जो इन हालात में मुमकिन नहीं। हुकूमत को चाहिए कि ज़मीनी हकीकत को समझते हुए नरमी बढ़ते। कविता ने कलेक्टर से सवाल किया कि आखिर अभी तक ख़रीदारी मराकिज़ का आगाज़ क्यों नहीं किया गया। किसान इस बात का मुतालबा कर रहे हैं IKP मराकिज़ के बजाय मिलर्स को बराह रास्त ख़रीदारी की इजाज़त दी जाए ताकि इन्हें इजाफी खर्च से नजात मिले। कविता ने कहा कि बहुत से खौलदार किसान अराज़ियात पर काश करते हैं, मगर इनके पास ज़मीन के दस्तावेज़ात ना होने की बुनियाद पर इनका धान नहीं ख़रीदा जा रहा है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ముఖ్యంగా పమేలా సత్పతి గారు, మరి ఇక్కడ కలెక్టర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. నెల రోజులు దాటిపోయింది, ఇంతవరకు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎందుకు ఓపెన్ కాలేదని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా కొనుగోలు కేంద్రాలు వెంటనే ప్రారంభించాలి. అసలు రైతులు యాక్చువల్గా కోరేది ఏంటంటే ఐకేపీ మధ్యలో వద్దు, మిల్లర్లకు మీరు అవకాశం ఇవ్వండి, చక్కగా మేము ఇడికెళ్ళి తీసుకుపోతాం, వాళ్ళ దగ్గరనే బస్తాలు దించుతామని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ మధ్యలో ఒక దగ్గర దింపడం, ఎండబెట్టడం, మళ్ళీ ట్రాక్టర్లకు ఎక్కేయడం అంటే వాళ్ళకి అదనపు ఖర్చు కూలీలకు కానీ బ్యాగులలో నింపడానికి కానీ చాలా దారుణంగా అవుతుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ మిల్లర్లకు మీరు ఆదేశాలు ఇవ్వండి. ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యం రీత్యా ఎంత తడిసిన ధాన్యమైనా, బూజు పట్టిన ధాన్యమైనా, మొలకలెత్తిన ధాన్యమైనా కొనాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. దయచేసి తక్షణమే ఒక మానవతా దృక్పథంతో కొనమని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. చాలా మంది కౌలు రైతులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇబ్బంది ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర భూమికి సంబంధించినటువంటి దస్తావేజులు లేకపోవడంతో కొనము అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే ముందు కౌలు రైతులకు అనేకమైన వాగ్దానాలు చేసి వచ్చిండ్రు.
మీరు తప్పకుండా వెసులుబాటు కల్పించాలి. కౌలు రైతులందరికీ కూడా పోతే మిల్లర్లు ఇమీడియట్గా కొనేటట్టు వెసులుబాటు కల్పించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. కొంచెం మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించండి. చాలా రోజులైంది ఇక్కడ కొనుగోలు కేంద్రాలు వచ్చి రైతులు వచ్చి కొనుగోలు కేంద్రాలు రాక ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. కాబట్టి తక్షణమే AITUC के यौम तासीस के मौके पर शहर निज़ामाबाद के यूनियन दफ्तर में झंडे की रस्म इजराई अमल में लाते हुए जलसे आम का किया गया इनकाद। AITUC के यौम तासीस के मौके पर शहर निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ई यूनियन दफ्तर में झंडे की नकाब कुशाई अमल में लाते हुए जलसे आम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर AITUC ज़िला निज़ामाबाद जनरल सेक्रेटरी ओमैया ने कहा कि आज़ादी के हुसूल के लिए मज़दूरों को 8 घंटे काम के औकात को मुकर्रर करने का हक़ के अलावा कम से कम उजरत व दीगर मुतालबात के साथ AITUC की नकाब कुशाई अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 106 सालों में हिंदुस्तान में मेहनत कुश तबक़े मुत्तहिद करने के क़ानून को हासिल किया गया, लेकिन आज मरकज़ों हुकूमतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हुए हासिल किए गए हुकूक़ को मनसूख करते हुए मालकिन के हुकूक़ की फराहमी अमल में लाई जा रही, जो कि मज़दूरों के साथ सरसराना इत्तेफाक़ी होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AITUC ज़िला सदर नरसिंगा राव, नायब सदर जकरा पानी हनुमांडलों के अलावा दीगर ने शिरकत की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम रन फॉर यूनिटी 2 के रन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर किया इनकाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर यौम कौमी एहतियात के मद्देनज़र यूनियन होम सेक्रेटरी डायरेक्टर IB के अहकामात के मुताबिक राष्ट्रीय एकता दिवस प्रोग्राम को आज महकमे पुलिस डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रन फॉर यूनिटी 2 के रन प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला निज़ामाबाद कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी के अलावा पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने शिरकत करते हुए झंडा लहराकर आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इनकाद अमल में लाए गए रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम को, जो कि ज़िले के खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से NTR चौरस्ता से होते हुए पुलिस परेड ग्राउंड और रेलवे कमान के अलावा अयप्पा मंदिर के साथ साथ मी सेवा दफ्तर के अलावा पॉलीटेक्निक और नीलाकंठेश्वर मंदिर तक इनकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ां कलेक्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में आज इनकाद अमल में लाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मद्देनज़र राष्ट्रीय एकता दिवस के अलावा कौमी एहतियात को मुनाकिद किया जा रहा है। हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी और मुल्क की सलामियत एहतियात के लिए कलीदी किरदार अदा करने का इजहार किया। కలెక్టరేట్ నుంచి DS చౌరస్తా నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. దీనికి మనకు ముఖ్య అతిథిగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు రావడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఒక వచ్చే మన మెసేజ్ ఏంటంటే మన ఐరన్ మ్యాన్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చాలా చిన్న చిన్న రాజ్యాల్ని అన్నిటినీ కలిపి ఎంతో 562 రాజ్యాలు ఉంటే ఇండియా ఫామ్ అయినప్పుడు అందరినీ కలిపి ఒక భారతదేశాన్ని తీసుకురావడం ఆయన చేసిన కృషిని మనం గుర్తిస్తూ సో ఈ సందర్భంగా అందరము కూడా మనం జిల్లా ప్రజలము, రాష్ట్ర ప్రజలము, దేశ ప్రజలము అందరం కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి స్ఫూర్తి మనము దేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచేటందుకు, యూనిటీగా ఉంచేటందుకు చేసింది గుర్తు చేసుకొని అదేవిధంగా యూనిటీగా ఉండేటందుకు ప్రయత్నించాలని కోరుకుంటున్నాను. इंदलवई मंडल के गन्नारम खरीदी सेंटर का जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी के अलावा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अचानक तनखी अमल में लाई। इंदलवई मंडल के मुकाम पर वाक़ गन्नारम देहात में क़याम अमल में लाए गए खरीदी सेंटर का जिला निज़ामाबाद कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी और रूरल निज़ामाबाद रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा इससे मुतालिक ओहदेदारों ने अचानक तनखी अमल में लाने के दौरान रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने धान के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेते हुए वहां पर मौजूद किसानों के धान का मुआवजा करके किसानों की पैदावार की हिफाजत के लिए टॉप लाइन को हवाले किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर
टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से ज़िला निज़ामाबाद में भारी पैमाने पर धान के ज़ख़ीरा पानी की ज़र में आ चुका है, जिससे किसानों की गीली होने वाली पैदावार को खरीदी करने के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात के मुताबिक हर एक किसान से धान का ज़ख़ीरा यकीनी तौर पर खरीदी करते हुए ज़िला निज़ामाबाद के इंदलवई मंडल के श्रीकोंडा मंडल और आरमूल मंडल में भारी बारिश दर्ज होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद 1500 मीट्रिक टन धान का ज़ख़ीरा गीला हुआ है, इसे हुकूमत की जानिब से यकीनी तौर पर खरीदी अमल में लाई जा रही है, लिहाजा किसानों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। किसान अपनी पैदावार को खरीदी सेंटर पर फ़रोख्त करने का इजहार किया। बादशाह रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत हुकूमत के अहकामात के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों से होने वाली भारी बारिश से मुतासिर धान का ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से खरीदी अमल में लाई जाएगी। किसानों को फ़िक्रमंद ना होने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में MRO वेंकटराव, MD अनंतराव, अरविना रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్వయంగా హెలికాప్టర్లో సర్వే చేస్తున్నారు వరంగల్, కరీంనగర్ ఆ ప్రాంతాలన్నిటి కూడా. సో ఒక పంట నష్టం జరగకుండా, ఒక నష్టం జరిగినా కానీ రైతుకు నష్టం జరగకుండా జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకుంటున్నాము. సో రైతులకు నేను ఒకటే భరోసా ఇవ్వదలుచుకున్నా ప్రభుత్వం తరఫున. మరి జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున దగ్గర హైయెస్ట్ ఇది. ఇప్పుడు పోయినసారి మనకు 8 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వరిధాన్యం వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు 9 లక్షల పైన వరిధాన్యం మెట్రిక్ టన్స్ వరిధాన్యం దిగుబడి వస్తారన్నారు. సో అక్కడక్కడ కొంచెం దొడ్డుబాట్లు కొంతమంది అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ వస్తుందని చెప్పి అమ్ముకున్నారు. సన్నవాట్లు అనేసరికి మనం కొంచెం ప్రభుత్వం బోనస్ ఇస్తుంది కాబట్టి మరి ఖచ్చితంగా మనం ప్యాక్ సొసైటీ ద్వారానే ఇవ్వాలి, లేకుంటే ఐకేపీలో లేకుంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కే ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నది. దాంట్లో కూడా మనం దగ్గర 7 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇప్పటికే 1,50,000 ఎకరా అంటే మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని మనం ప్రొక్యూర్ చేసాం. ఏదైతే మనము ఇప్పుడు తడిసిన ధాన్యాన్ని కొంటున్నాం, లేకుంటే రంగు మారిన ధాన్యాన్ని కొంటున్నాం, మనం దానికి ఇలా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొనట్లేదు. వాళ్ళు ఇచ్చింది ఓన్లీ 55 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులకు మాత్రమే మనకి. मुंतहा तूफान से तबाह होने वाली फसलों को जंगी बुनियाद पर खरीदी करने का AIUKS कायदीन ने किया मुतालबा। अखिला भारता आकिया रैतु संगम AIUKS के ज़ेर एहतमाम बारिश की वजह से 20% गिली होने वाली धान के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर ख़रीदी करे और बारिश के सबब मुतासिर फसलों के किसान को नुकसान के तखमीनदे की अदायगी अमल में लाने के लिए इससे मुतालिक एक याददाश्त GC को हवाले किया। इस मौके पर AIU रियासती सदर V प्रभाकर ने कहा कि मुंतहा तूफ़ान की वजह से ज़िला में किसानों को कटाई के लिए आने वाली फसलें मुतासिर हुई हैं, जिससे इन किसानों का भारी नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए मुंतहा तूफ़ान से मुतासिर किसानों की पैदावार को फौरी तौर पर खरीदी अमल में लाकर मुनासिब कीमत देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AIU के ज़िला सदर सेक्रेटरी S सुरेश के अलावा आकुला गंगाराम सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। గురువారం శుక్రవారం కురిసిన భారీ వర్షాల్లో తడిసిన ధాన్యాన్ని, తడిసిన మొక్కజొన్నను, పత్తిని యుద్ధ ప్రాతిపదికన కొనుగోలు చేయాలి. 20% తేమ శాతం ఉన్నా ఎక్కడ నిరాకరించకూడదు. రెండవది, ఏదైతే దొడ్డు ధాన్యాన్ని ఈరోజు కొనుగోలు చేయడానికి నిరాకరిస్తున్న రైస్ మిల్ యజమానులపైన చర్య తీసుకోవాలని, అట్లాగే తేమ శాతం ఉందని తరుగు ఎక్కువ అడిగే వ్యాపార వర్గాలు వాటిపైన నిఘా పెట్టాలని చెప్పేసి అఖిల భారత ఐక్య రైతు సంఘం డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. इंदलवई में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम रन फॉर यूनिटी के मौके पर 2K रन का किया गया इनकाद। इंदलवई मंडल के मराकिज़ पर महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम रन फॉर यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मद्देनज़र CI विनोद रेड्डी और SI संदीप के अलावा मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन और युवा जना संगम के नौजवान के ज़ेर एहतमाम आज सुबह ठीक 8 बजे तक 2K रन फॉर यूनिटी का इनकाद अमल में लाया गया। कौमी एकजुटती का पैगाम देते हुए इंदलवई मंडल में वाक़
धरानी हॉस्पिटल से पाईतांडा तक मुनाकिद दौड़ में पुलिस अहलकारों के अलावा अमला और तुलबा की कसीर तादाद जोशो खरोश के साथ शिरकत करते हुए हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। इस मौके पर डिचपली सीआई विनोद रेड्डी ने कहा कि एकता दिवस श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर सुबह के वक्त 8 बजे से तकरीबन 70 नौजवान और महकमे पुलिस का अमले के अलावा अवामी नुमाइंदों के हमरा 2K रन पुलिस कमिश्नर पी सई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक आज 2K रन का इनकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीआई संदीप, बीजेपी मंडल सदर सत्यानारायण, बीजेपी सीनियर कायदीन राजन्ना के अलावा महकमे पुलिस का अमला मौजूद थे। हुजूराबाद मंडल के रामपुर में वाक़े BC वेलफेयर हॉस्टल में मशकूक हालत में फौत होने वाली श्री वर्षिता के अफराद ख़ानदान से के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। हुजूराबाद मंडल के मुकाम पर तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने रामपुर में वाक़े BC वेलफेयर हॉस्पिटल में मशकूक हालत में फौत होने वाली श्री वर्षिता के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। के कविता ने श्री वर्षिता के अचानक फौत पर स्पेशल इंक्वायरी का मुतालबा किया और 1.5 साल में वेलफेयर हॉस्पिटल में 110 तुलबा की कीमती ज़िंदगी ज़ाय होने पर दुख का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस मौके पर खातिर ख्वाह तवज्जो न देने वाली हुकूमत को इसका खुमेज़ा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होने का इजहार किया। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने सख्त लहजे में जवाब दिया। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आज मोहम्मद अजहरुद्दीन ओहदे का हलफ लेने के लिए राजभवन में आने के मौके पर मीडिया के साथ मुनाकिद मीडिया इजलास से कहा कि मुल्क के गद्दार कौन है और मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने वालों के बारे में किशन रेड्डी को वक्फियत हासिल ना होना काफ़ी तकलीफदा मरहला होने का इजहार किया। इन्होंने एक अक़लियती क़ायद को काबीना में शामिल किया जा रहा है तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है कहते हुए बरहमी जताई। इन्होंने मजीद कहा कि एक गरीब घराने में पैदा होने वाले अजहरुद्दीन ने दिन पर दिन तरक्की हासिल करने के बारे में याद दहानी की। इन्होंने कहा कि इन पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी की जानिब से अदा किए जाने वाले अल्फाज मुनासिब ना होने का इजहार। शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकारीब में BJP MLA धनपाल ने शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर पेश की खिराज अकीदत। मुल्क के पहले नायब वजीर आज़म मरकजी वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर ज़िला BJP सदर दिनेश पटेल कुलाचारी के ज़ेर एहतमाम RR चौरस्ता शिवाजी के मुजस्समे से वर्नी चौरस्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल मुजस्समे तक राष्ट्रीय एकता दिवस यौम कौमी एहतियात के मौके पर रन फेयर यूनिटी रैली का इनकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ां सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर BJP ज़िला सदर दिनेश पटेल कुलाचारी के अलावा अर्बन MLA धनपाल, सूर्या नारायण गुप्ता और कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन P गंगा रेड्डी के अलावा पार्टी कायदीन ने इनके मुजस्समे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में PK लक्ष्मी नारायण, N लक्ष्मी नारायण के अलावा प्रमोद कुमार और B किशन व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने सड़क हादसे में जख्मी होने वाले बाबापुर देहात के साकिन हयात के अफराद ख़ानदान को 1 लाख की LOC की हवाले। भीमगल मंडल के बाबापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हयात को हाल ही में हादसा होने के बाइस निम्स हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए शरीक करवाने के ताल्लुक़ से अवामी नुमाइंदों की जानिब से MLA वेमला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद इन्होंने फिलफौर रद्द अमल जाहिर करते हुए 1 लाख रुपये LOC मंजूर करवा LOC की कापी इनके ख़ानदान के अराकीन को हैदराबाद में वाक़े इनके क़यामगाह में हवाले किया। मुतासिर ख़ानदान के अराकीन ने LOC फराहम करने वाले बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। सालूरा में आंगनवाड़ी भवन की तामीरी कामों का आंगनवाड़ी ओहदेदारों ने रखा संगे बुनियाद।
सालूरा मंडल के नए आंगनवाड़ी भवन की तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस भवन की तामीरी कामों के लिए तकरीबन 12 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से आंगनवाड़ी ओहदेदारों की जानिब से बताया गया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद मंडल में मौजूद मासूम बच्चों के अलावा हामिला खवातीन को मयारी तिब्बी इमदाद फराहम करने का इजहार किया। शहर निज़ामाबाद के खिला रोड पे वाक़े गोल्डन जुबली कॉलेज बगैर इजाज़त के तुलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करना मुनासिब नहीं है। ज़िला निज़ामाबाद के खिला रोड पर वाक़े गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज महकमे तालीम के क़वाइद व ज़ाबित के ख़िलाफ़ जारी है। इस कॉलेज इमारत के लिए गुज़िश्ता मई के महीने में ली गई इजाज़त मुकम्मल होने के बावजूद भी इंतज़ामिया खातिर ख़वान तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गुज़िश्ता तुलबा तंजीम की जानिब से की गई जद्दोजहद से इस कॉलेज को दूसरी इमारत में मुंतकिल करने के लिए इजाज़त लेते हुए फिर दोबारा क़दीम इमारत में ही इस कॉलेज का इनेकाद अमल में लाना मुनासिब नहीं है। गुज़िश्ता DIEO करीब रहकर इस कॉलेज को खाली करवाया था, लेकिन इंतज़ामिया आर्जी तौर पर खाली करते हुए फिर दोबारा यानी 2-3 दिन के बाद क़दीम इमारत में क्लासेस का इनेकाद करते हुए महकमे तालीम के ओहदेदारों की हिदायत को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। गोल्डन जुबली कॉलेज के इंतज़ामिया फौरी तौर पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए महकमे तालीम के ओहदेदारों की हिदायत पर अमल आवारी करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना वजीर के तौर पर कांग्रेस के सीनियर कायद साबिका क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ओहदे का हलफ लिया। राजभवन में गवर्नर जिष्णु देवु वर्मा ने ओहदे का दिलाया हलफ। रियासत तेलंगाना में हुकूमती मुशीर के तौर पर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को किया गया तकरीरी सेक्रेटरीट में मिनिस्टर के साथ एक्शन चैम्बर किया मुक्त। 6 गारंटी के निफाज की जिम्मेदारी भी की हवाले। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनकाद। हर गांव में 2K रन का इनकाद करते हुए इनकी तस्वीर पर अवामी नुमाइंदे ओहदेदारों ने पेश की खराज अकीदत। मुल्क की सलामियत के लिए अहम तरीन किरदार अदा करने का सहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर-ए-तमाम शहर में रन फेयर यूनिटी प्रोग्राम का जिला कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी CP साई चैतन्या ने की शिरकत। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कायद नहीं बल्कि वो एक ताकत है। शहर निज़ामाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती तकारीब में BJP MLA धनपाल ने शिरकत करते हुए इनके मुजस्समे पर पेश की खराज अकीदत। बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने सड़क हादसे में जख्मी होने वाले बाबापुर देहात के साकिन हयात के अफराद खानदान को 1 लाख की LOC की हवाले। हैदराबाद मंडल के रामपुर में वाक़े BC वेलफेयर हॉस्टल में मशकूक हालत में फौत होने वाली श्री वर्षा के अफराद खानदान से तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।